Hello, friends. Today we will have knowledge on various nicknames of Indian states. So, let's start. So, the first one is Jammu and Kashmir. The following two nicknames are Paradise on Earth and Heaven in India are given due to their scenic beauty as alpine forests, natural lakes, snow-capped mountains, and Asia's largest tulip garden is also present in Jammu and Kashmir. Kashmir is referred as the mini Switzerland of India. Here, the second one is Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is called as fruit bowl of India due to its suitable climate and soil for fruit cultivation. We can cultivate various kinds of fruits, particularly apple, in Himachal Pradesh. The next one is Punjab, breadbasket of India, granary of India, land of five rivers. Breadbasket of India, as Punjab cultivates huge amount of paddy, wheat and various cereals. Punjab is the land of five rivers. The following five rivers are Bees, Chenab, Ravi, Jhelum and Satluj. Uttarakhand. Uttarakhand is also referred as the land of gods or Devbhumi because of its religious significance. This state is also close to Mount Kailash. Uttarakhand is also referred as the Valley of Flowers because the Valley of Flowers is a national park in Uttarakhand. This name was given by the British mountaineer Frank S. Smith in 1931. This valley is famous for its meadows of alpine flowers and natural beauty. Haryana is known as the milk belt of India because it is the second largest milk producer in the country, producing about 10% of India's total milk. And the largest producer of milk is Uttar Pradesh. Haryana is also known as the Denmark of India because of its high agricultural productivity, particularly in the area of the milk production. It is also referred as the land of rotis because its people enjoy different types of rotis जैसे गेहूं का रोटी हो गया, फिर बाजरे की रोटी हो गई, ऐसे वेरियस टाइप ऑफ रोटी वो लोग खाते हैं. हरियाणा इज़ रेफर्ड एज द होम ऑफ गॉड्स बिकॉज उसका जो नाम है ना हरियाणा, वो दो संस्कृत वर्ड से डराइव हुआ है, हरि और योना. हरि मतलब लॉर्ड विष्णु, योना मतलब होम. So the home of God. Uttar Pradesh, the heartland of India, as it is located at the center of the country and has the largest population than any other Indian state. Uttar Pradesh is also referred as the sugar bowl of India as it is the largest sugarcane producing state. Uttar Pradesh is the land of legends, rivers, and ancient cities, as it is the home to ancient cities like Kaushal, Hastinapur, Ayodhya, Mathura, and Vrindavan. Uttar Pradesh has a very rich culture and tradition. It is the birthplace of Lord Rama and Lord Krishna. This state also has Taj Mahal and Varanasi as its popular tourist attractions. Bihar, the land of monasteries, as both Buddhism and Jainism originated from this state. It is the great spiritual way of Buddhism and Jainism. That is why the region is full of monasteries known as stupa. Rajasthan, the land of kings because of its history of rulers and warriors. राजस्थान का जो नाम है ना, उसी में से पता चलता है. राज का मतलब राजा और स्थान मतलब प्लेस. सो राजस्थान इज बीइंग रूल्ड बाय राजपूत्स एंड मैनी अदर वॉरियर्स, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, मुगल एम्परर अकबर, महाराणा प्रताप, बहुत ऐसे रूलर्स हैं. राजस्थान इज कॉल्ड एज द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स थार डेजर्ट. गुजरात, द लैंड ऑफ लायंस, ये पर्टिकुलरली एशियाटिक लायंस के लिए बोला गया है क्योंकि अदर दैन अफ्रीका
एशियाटिक लायन सिर्फ गुजरात में नेचुरल हैबिटेट में होते हैं, वो भी गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में। ऑल्सो गुजरात इज़ रेफर्ड एज द ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स रिच हेरिटेज, अट्रैक्टिव सीनरी एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। मध्य प्रदेश द सोया स्टेट, ऐसा इसलिए ही बोला जाता होगा बिकॉज मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन्स। और एक बात, सोयाबीन्स को गोल्डन बीन्स भी बोला जाता है। और मध्य प्रदेश 64% ऑफ कंट्रीज़ मतलब इंडिया का टोटल सोयाबीन प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूट करता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। अगर किसी ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो उन्हें ये बात पता होगा बिकॉज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं एंड वेल प्रिजर्व्ड हैबिटेट्स होते हैं उनके लिए। लास्टली मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके 3 रीज़न्स हो सकते हैं। मेनली लोकेशन हो सकता है बिकॉज पूरा मिडिल में है, मध्य देश बोला जाता था पहले। कल्चर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, रिसोर्सेज में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत सारे रिसोर्सेज में मैक्सिमम अमाउंट में कंट्रीब्यूट करता है। छत्तीसगढ़ राइस बाउल ऑफ इंडिया, इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया इसलिए नहीं बोला जाता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट होगा, बट इसलिए बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे राइस के वैरायटी ग्रोन होते हैं। लगभग 20,000 वेराइटीज़ ऑफ राइस इंक्लूडिंग वाइल्ड, कल्टीवेटेड, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक टाइप्स के राइस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। छत्तीसगढ़ को ट्राइबल हार्ट ऑफ इंडिया इसीलिए बोला जाता है बिकॉज 1/3 ऑफ जो छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन है वो ट्राइबल ही है। यहाँ पे 40 ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते हैं। ओडिशा द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ओडिशा इज़ नोन फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एस्पेक्ट है ओडियाज़ का। एंड जो रथ यात्रा है मोस्ट फेमस, वो लॉर्ड जगन्नाथ का ही है। ओडिशा इज़ द सोल ऑफ इंडिया इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, पीपल एंड रिच कल्चरल हेरिटेज। उसमें बहुत सारे वाटरफॉल्स है, रिवर्स है, हिल्स है, गोल्डन बीचेस है, एंशियंट टेम्पल्स है और लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी इसे बोला जाता है। झारखंड द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, झारखंड के नाम में ही ये पता चलता है, झार मतलब फॉरेस्ट और खंड मतलब लैंड। 29% ऑफ टोटल झारखंड इज़ फॉरेस्ट। वेस्ट बंगाल मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल कल्चर इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे वेरियस कल्चर्स के लोग और वेरियस लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, मतलब मल्टी रैशियल एंड मल्टीलिंगुअल एमलगमेशन। ऑफन कोलकाता को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आसाम टी सिटी ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट और वो इंडिया का 52% टी प्रोड्यूस करता है। आसाम द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, ये उसके यूनिक टोपोग्राफी के वजह से बोला गया है। ब्रह्मपुत्र रिवर को रेड रिवर के तरह रेफर किया गया है और जो हिल्स है साइन करता है उन्हें वो ब्लू हिल्स के नाम से रेफर किए हैं। आसाम को कमारूप भी बोला जाता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी द लैंड वेयर कामदेव रिगेन्ड हिज लाइफ एंड ओरिजिनल फॉर्म इज़ नोन एज कमरूप एंड ये आसाम स्टेट को रिजेंबल करता है। मेघालय अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज मेघालय का मतलब ही है अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स इन संस्कृत और इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। त्रिपुरा गॉट दिस डेजिग्नेशन हिल तिपेरा in 1905 when it became a part of new province of Eastern Bengal and Assam. मिज़ोरम इज़ द लैंड ऑफ मिजोज़, ये जो मिजोज़ है ना ये एक एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो मिज़ोरम के हिल्स पे रहते हैं। मिज़ो जो एक है ना वो लोकल टर्म है हाईलैंडर्स के लिए।
मिज़ोरम द लैंड ऑफ हिल्स इसीलिए बोला जाता है बिकॉज़ वहाँ पे 21 मेजर हिल रेंजेस हैं, बहुत सारे पिक्स हैं विथ वेरियस हाइट्स, और जितने भी हिल्स हैं वो 2000 मीटर्स से अबव के हैं। मिज़ोरम को मोलासेस का बेसिन भी बोला जाता है बिकॉज़ यहाँ पे शुगर कैन का कल्टीवेशन होता है वो, और पूरा जो टेम्परेचर, क्लाइमेट, वाटर चाहिए शुगर कैन प्रोडक्शन के लिए वो प्रेजेंट है मिज़ोरम में। मिज़ोरम इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन। मणिपुर का लिटरल ट्रांसलेशन ही यही है, ए ज्वेल्ड लैंड। एंड जो मणिपुर है ना वो 9 हिल्स से सराउंडेड है विथ एन ओवल शेप्ड वैली एट द सेंटर। मणिपुर द लैंड ऑफ जेम्स, ये जो नाम आया है ना ये मणिपुर का संस्कृत से आया है। नागालैंड द लैंड ऑफ वॉरियर्स इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स एंड रिच ट्रेडिशनल हेरिटेज। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला जाता है बिकॉज थ्रू आउट द ईयर वहाँ के जो ट्राइब्स है बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। नागालैंड द फैल्कॉन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, फैल्कॉन जो है ना एक बर्ड स्पीसीज़ है, और ये नागालैंड में 1 मिलियन अमूर फैल्कॉन्स ईच ईयर दिखाई देते हैं। और नागालैंड को स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लैंडस्केप्स, कलरफुल सनशाइन, सनसेट्स, और जो फ्लोरा एंड फौना के वैरायटीज़ हैं। अरुणाचल प्रदेश लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सी द सनशाइन। जैसे वर्ल्ड में जापान इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन, वैसे अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया एंड ऑर्चिड पैराडाइज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स। इस स्टेट में 622 स्पीसीज के ऑर्चिड्स मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज़ द botanist paradise because of its rich biodiversity and wide range of altitudes and climates. सिक्किम द वैली ऑफ राइस इसीलिए बोला जाता है बिकॉज सिक्किम का क्लाइमेट, रेनफॉल, टोपोग्राफी बिल्कुल सूटेबल है राइस प्रोडक्शन के लिए। सिक्किम इज़ नोन एज द लैंड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बिकॉज ऑफ इट्स ड्रामेटिक लैंडस्केप, बायोडाइवर्सिटी एंड लोकेशन। जो रग्ड माउंटेन्स है, डीप वैलीज़ है, डेंस फॉरेस्ट, लेक्स, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, ये सब के लिए। महाराष्ट्र इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स एंट्री पॉइंट टू द सिटी एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया फॉर शिप्स फ्रॉम द अरेबियन सी। महाराष्ट्र में एक प्लेस है महाबलेश्वर, वो फेमस है एज क्वीन ऑफ सह्याद्री हिल्स। तेलंगाना, आप सबने हैदराबादी बिरयानी सुना ही होगा बिकॉज वो बहुत फेमस है। नाउ हैदराबाद इज़ इन तेलंगाना, सो तेलंगाना इज़ द बिरयानी कैपिटल ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश कोहिनूर ऑफ इंडिया because of its rich cultural heritage, natural beauty and historic landmarks. Andhra Pradesh is called as the egg basket or egg bowl of India because of its largest production of eggs in India as well as Asia. Karnataka is referred as one state many worlds because of its diverse cultures, religions and languages. कर्नाटका में बहुत वैरायटी के लोग रहते हैं, बहुत लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर्स फॉलो करते हैं। और ये तो हमें पता है दैट कर्नाटका इज़ द आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी, साइंस सिटी ऑफ इंडिया। तमिलनाडु इज़ कॉल्ड एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स बिकॉज देर आर मैनी टेम्पल्स अक्रॉस द स्टेट. It is also called as the hub of India due to its many technological parks throughout the state. Lastly, Kerala. Kerala is the spice garden of India because in Kerala we can find various types of spices which are famous worldwide.
Kerala is also called as God's own country because of a mythological belief that the state Kerala was created by Lord Parshurama when he threw his axe into the ocean to create a land for his followers.